सर आप लोग क्या वो बैनर आया हुआ है Good afternoon, all of you. Within few minutes, I start our program. एक्सक्यूज मी मैम। Yes. मैम मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि शो हो रही कि नहीं हो रही। Okay, sir. विजिबल, पीपीटी इज विजिबल। हेलो हेलो। हाँ सर, विजिबल है पीपीटी सर। हेलो, पीपीटी विजिबल हो रही है ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, परफेक्ट सर जी। Sir, this is a visible. Hello. Okay. Good afternoon, everyone. This is a privilege to announce, on behalf of Government College, MH College of Home Science and Science for Women, Autonomous Jabalpur, Madhya Pradesh. When we are going to organize a one-week faculty development program on information communication technology in teaching for higher education methodology, which is sponsored by State Project Directorate Department of Higher Education, Government of MP Bhopal under the World Bank project of MP Higher Education Quality Improvement Program. Myself, Dr. Durga Mishra, Faculty of MH College, Jabalpur. As I host, I welcome Honorable Chief Patron, Professor Srimati Leela Bhalabi ji, who is Additional Director, Higher Education, Jabalpur Division, Jabalpur. Now, with good wishes and kind permission of the Chief Patron, Professor Leela Bhalabi ma'am, we are going to start this FDP. शायद मैम हमारे साथ विजिबल नहीं है। Then next, I welcome our energetic patron and principal, Dr. Akhilesh Ayachi, who always work hard for the growth of institution. I request him to deliver a welcome speech. Over to you, sir. Welcome, sir. प्रोफेसर अखिलेश अयाची सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? I think some technical problem.
Okay. There is some technical problem. That's why he is not joining with us. Now I introduce our convener, Professor Rajen Mishra, HOD English Department. Under warm guidance, I was able to organize the FDP. Next, our convener, Dr. K.S. Bhatia, Professor Maths Department. Now it's great honor for me to introduce our coordinator, Dr. Girish Verma, Professor, Department of Physics. He has given tremendous support to conduct this FDP. मैं यहाँ पर इस ऑनलाइन मंच के माध्यम से आप सभी अतिथियों का स्वागत करती हूँ कि आप सभी इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं और इस प्रोग्राम में जो आपको निश्चित ही लाभान्वित करेगा, आपको बहुत सारे टेक्निकल टूल्स और टेक्नोलॉजी के बारे में अवगत कराएगा जो निश्चित ही आप लोगों के लिए लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट, जैसा कि आप जानते हैं, ये कोविड का दौर चल रहा था। ड्यू टू COVID-19 सिचुएशन, वी आर नॉट एबल टू conduct offline teaching classes. It is only the technology which has helped us to teach our students. आप सभी जानते हैं, COVID-19 की स्थिति से हम सभी एक जगह पर थम गए थे, रुक गए थे, फिर चाहे वो स्कूली शिक्षा हो या महाविद्यालय के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा। ऐसे में अगर किसी तकनीक ने हमारा साथ निभाया तो वो थी ऑनलाइन क्लासेस, ICT टूल्स एंड टीचिंग, जिसकी वजह से यह संभव हो पाया और आज हम अपने घरों में सुरक्षित रहकर भी इस एजुकेशन का पार्ट बने और अपने बच्चों को तथा खुद को शिक्षित कर पा रहे हैं। और इन परिस्थितियों में भी इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हो पा रहा है। मैं आशा करती हूँ यह कार्यक्रम निश्चित ही आप सभी शिक्षकों को ज्ञान का अर्जन कराएगा, साथ ही नई तकनीक का उपयोग कैसे किया जाता है इससे भी अवगत कराएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे जितने भी प्रोफेसर्स हैं, सीनियर प्रोफेसर्स हैं, उन सभी के पास ज्ञान का अर्जन है और उन्हीं के द्वारा दिए हुए ज्ञान से, उन्हीं के द्वारा सिखाई हुई तकनीक से आज हम यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हो पा रहे हैं। परंतु कुछ तकनीकी अभाव के कारण कई बारी हमारा प्रेजेंटेशन ऑनलाइन क्लासेस में बेहतर नहीं हो पाता है। तो निश्चित ही ये जो विषय का चुनाव किया गया है वो आपके लिए, आपको लाभान्वित करेगा और आपको इस तकनीक से हेल्प मिलेगी जिससे आप आत्मनिर्भर होकर किसी भी कार्यक्रम को कर सकते हैं, किसी भी तरह से टीचिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। This FDP program is divided in a 6 part. The FDP program schedule is day 1 to day 6. Our today's resource person is Dhirendra Tripathi, Assistant Professor, Nachiketa College of Computer Science, Commerce and Advanced Technology, who will tell us about the Google Drive. ये हमको Google Drive के बारे में अवगत कराएंगे। आप सभी जानते हैं मोबाइल में भी ड्राइव होती है, ऐसे ही आपके सिस्टम में, लैपटॉप में भी Google Drive होती है जो कि हमें फाइल को सेव करने से लेके क्रिएट करने तक की प्रोसेस बताती है। तो आज हमारे जो स्पेशल स्पीकर हैं मिस्टर धीरेन्द्र त्रिपाठी जी, ये हमको इसके बारे में अवगत कराएंगे। सेकेंड डे
The next second speaker is Mrs. Manorama Chauhan, Assistant Professor, Department of Information Technology, SVVV, Indore, who will tell us about the Google Form registration and feedback quiz. मैडम हम सभी को बताएंगी कि किस तरीके से गूगल फॉर्म को क्रिएट किया जाता है, रजिस्ट्रेशन लिंक और फीडबैक लिंक, जिसका इस वेबिनार में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ। इस वर्ष होने वाली ऑनलाइन कक्षाओं में या वेबिनार में हम सभी ने इस सिस्टम को सबसे ज्यादा फॉलो किया और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बाद भी हमें इसके बारे में प्रॉपर इसका यूज कैसे किया जाता है हम सभी अवगत नहीं हैं। तो मैडम आपको इसके बारे में लेक्चर डिलीवर करेंगी। देन नेक्स्ट आवर स्पेशल स्पीकर इज श्री नरेश कुमार सोंधिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, RDVV, Jabalpur, who will tell us about the security ethics in teaching. Then our next speaker is Nitin Kumar Patel, Assistant Professor, Mata Gujri Mahila Mahavidyalaya, Autonomous, Jabalpur, Director, Indian Teach IT Solution, who will tell us about the YouTube live recorder stream and schedule. ये आपको YouTube में किस तरीके से लिंक बनाई जाती है, शेयर की जाती है। अगर आप अपना कोई भी चैनल या आप अपने कोई भी प्रोग्राम लॉन्च करना चाहते हैं तो किस तरीके से YouTube के माध्यम से आप उसको विजिबल कर सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। The next, Mr. Anjali Chaudhary, Assistant Professor, CGTB, खालसा कॉलेज जबलपुर। ये आपको क्विज एंड ई सर्टिफिकेट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, जैसा कि आप सभी इस वर्ष मेरे ख्याल से सभी महाविद्यालय में ये ऑनलाइन वेबिनार कराया गया, जिसके कारण आप सभी को फीडबैक लिंक, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, गूगल फॉर्म, इन सभी के नाम आप सभी लोग इससे परिचित हैं। पर हाउ टू क्रिएट, हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में मैडम आपको कंफर्टेबली बताएंगी। और आई थिंक इन लेक्चर्स को सुनने के बाद आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, आप सेल्फ डिपेंड होके इनका यूज कर पाएंगे। द नेक्स्ट, श्री अनुराग उपाध्याय, हेड डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, GS कॉलेज जबलपुर, who will tell us about the Google Classroom. सर आपको गूगल क्लासरूम के बारे में अवगत कराएंगे, जहां पर आप एक अनोखा अनुभव करेंगे कि हम किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस में भी विजिबल होके हम इरेजर, पेन, पेंसिल का इस्तेमाल, या अगर हमें कुछ बोर्ड का इस्तेमाल करना है तो किस तरीके से हम वहां पर लेक्चर को डिलीवर कर सकते हैं और इजी वे में हम कंडक्ट कर सकते हैं। अगर कोई बॉटनी या कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो वहां पर हम किस तरीके से इमेजेस को प्रेजेंट कर सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। तो नेक्स्ट मैं सभी हमारे स्पीकर्स का, हमारे अतिथियों का स्वागत करती हूं इस कार्यक्रम में, और अन्य महाविद्यालय एवं हमारे महाविद्यालय परिवार की ओर से सभी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं सभी लोगों का स्वागत करती हूं कि आप सभी पार्टिसिपेंट जो भी इस प्रोग्राम में, FGP प्रोग्राम में ज्वाइन हुए हैं, वो निश्चित ही इससे लाभ लेंगे। नेक्स्ट, I heartily welcome to our first speaker, Shri Dhirendra Tripathi sir. He has been an active academician. Sorry, मैं कार्यक्रम के बीच में हमारे प्रोफेसर गिरीश वर्मा सर को बुलाना चाहूंगी, जो हमें कार्यक्रम के मोटिव के बारे में बताएंगे
कि हमारे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के पीछे क्या उद्देश्य रहा है। प्रोफेसर गिरीश वर्मा सर, ओवर टू यू सर। Thank you, Madam Durga Mishra ma'am. And on behalf of the college, the organizing team, the chief patrons, the patron, convener, co-convener, myself, and IQAC, the college as a whole family invite and give good wishes to all the past participants who have joined this faculty development program. It is a week's program and it is going to help all of us to learn certain things about teaching aids and how we can use these aids to benefit the students in teaching, learning, and in transferring our knowledges to the students in general. So I request all the participants to please take interest in this program. The program will be from 2:30 onwards, and the experts are already introduced by Madam Durga Mishra ma'am, and it is going to be a good benefit to all our college teachers who have already crossed 55 years. We are not aware of certain Google Drives, pen drives, and certain equipments which are related to the computer. So I will request on behalf of the whole organizing team and the family of Home Science College that everybody takes keen interest in this participation and learns a lot of things which the new generation are already adopting day by day. They are enhancing their knowledge. We also have an opportunity given by the state project of government, MP Higher Education. So my humble request to all the participants that every day we'll be joining at 2:30 with our experts giving certain details on different topics, whether it is the YouTube, whether it is the Google Drive, whether it is the feedback, quiz, and other schedules, how the Google Classroom can be organized, and even the lecture series can be organized. It was going to help everybody of us. So once again, I request all the participants to take keen interest and be benefited about the latest technology which we have to use. We should learn and we should give it to the next generation, and the students will also be benefited by it. Thank you, ma'am. Mishra, please continue as per the schedule. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम अनम्यूट कर दीजिए। मैम अभी भी नहीं आ रही। मैम Okay. अनम्यूट। मैम आ गई, अब आ गई जी, आ गई। हाँ जी, ओके सर। Dhiren Tripathi sir, over to you. Can you hear me? सर Yes, आप मुझे ma'am. सुन पा रहे हैं? Yes, ma'am. I listen. Okay sir. So please continue. Okay. Thank you, ma'am. Today's FDP program conducted by the Home Science College. The topic ICT tools in teaching for higher education methodology.
today's topic, Google Drive. We know all about the Google. हम सभी जानते हैं कि गूगल क्या है और उससे फेमिलियर भी है गूगल से। क्योंकि गूगल ड्राइव के बारे में मुझे डिस्कशन करना है, तो गूगल ड्राइव को बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहता हूं कि गूगल ड्राइव को अपन एक्सेस तभी कर सकते हैं जब आपके पास जीमेल अकाउंट हो। तो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा कि आपको जीमेल अकाउंट जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। आई हैव टू शेयर पीपीटी। PPT is visible, ma'am? No, sir. It is not visible. Okay, okay, ma'am. Tripathi sir, the screen is visible now. You can start, please. Okay, sir. Today's topic, Google Drive. So now we discuss the how to use Google Drive. जैसा मैंने बताया कि Google Drive को अगर एक्सेस करना है तो सबसे पहले आपके पास Google में Gmail अकाउंट होना जरूरी है। Gmail के लिए बनाना जरूरी है Gmail अकाउंट। तो सबसे पहले आप देखिए, मैंने आपके स्क्रीन पर जो पीपीटी शेयर करी है उस पर सबसे पहले हम ब्राउजर को ओपन करेंगे और उस ब्राउजर पर हम गूगल जीमेल अकाउंट टाइप करेंगे google.com। जैसे ही google.com आप टाइप करेंगे वहां पर आपको एक जीमेल अकाउंट के लिए एक्सेस करने के लिए एक ऑप्शन आएगा। यदि आपके पास जीमेल अकाउंट नहीं है तो आप जीमेल अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ इस टाइप का फॉर्म आपके सामने ओपन होगा और उस फॉर्म में आपकी जो जनरल एंट्रीज है उनको करना है, लाइक नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर इज मैंडेटरी बिकॉज यदि मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि आप किसी दूसरे सिस्टम पे एक्सेस करना चाहते हैं या आपके सिस्टम के अलावा कुछ और भी चीजें आपको एक्सेस करनी है तो मोबाइल नंबर के आधार पे आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। क्योंकि गूगल फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, वो एक सिक्योरिटी पर्पस की बात होती है कि यदि मान लीजिए आपका अकाउंट कोई दूसरा सिस्टम में एक्सेस करना चाह रहा है तो उस मोबाइल नंबर पे आपको क्या मिलेगा, एक जी कोड आता है जिसे गूगल प्रोवाइड करता है एट द रन टाइम जब आप सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं। दूसरा, फर्दर कभी ऐसा हुआ कि आप अपना पासवर्ड आपने डाला और वो पासवर्ड यदि आप भूल गए हैं या मिसप्लेस हो गया जो भी किसी भी कारण से, तो आप इस मोबाइल नंबर के माध्यम से भी आप उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। उस पर आपको क्या मिल जाएगा, एक कोड मिल जाएगा। दोबारा उसको पासवर्ड को आप रीसेट कर लीजिए और अपने अकाउंट को आप एक्सेस कर लीजिए। तो मैंने जैसा बताया कि आपको यदि अकाउंट नहीं है तो आपको अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, पहले क्रिएट करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, यदि आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप उस अकाउंट के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। मैंने पीपीटी में यहाँ पे शेयर किया हुआ है कि यदि मान लीजिए आपका अकाउंट बना हुआ है पहले से तो आप उसको एक्सेस करिए। आपने जैसे ही अकाउंट को एक्सेस किया तो ये ऐसा एक विंडो सामने ओपन होकर आएगा जिसमें आपका जीमेल अकाउंट और पासवर्ड, जैसे आप इसको एंटर करेंगे, एंटर करने पे आपको फ्रंट पे जो जीमेल अकाउंट का जो पेज होगा वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। राइट साइड में आपका जीमेल अकाउंट जिस नाम से आपने खोला हुआ है अकाउंट वो, और उसके बाजू में कुछ डॉटेड पिक्सेल्स दिख रहे हैं जो आप देखेंगे लगभग 9 डॉटेड्स के बने हुए हैं। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा एक पॉपअप विंडो ओपन होगा जिसमें ये सारी गूगल से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी चीजें आपको शो होंगी। यहाँ पे जैसे माई अकाउंट, सर्च, मैप्स, यूट्यूब,
प्ले, जीमेल, ड्राइव, कैलेंडर, गूगल प्लस, ट्रांसलेटर, फोटोज एंड मेनी मोर। हम चूंकि गूगल ड्राइव की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे फर्स्ट रो थर्ड नंबर पे ये गूगल ड्राइव का एक जो सिंबल है, पिक है, आइकन है, वो आपको दिख रहा है। हम उस आइकन पे जाके क्लिक करेंगे। जैसे ही ड्राइव पे आप क्लिक करेंगे, ड्राइव को क्लिक करने के बाद आप देखेंगे वो ऐसा ड्राइव का एक विंडो ओपन होगा और लेफ्ट साइड में कुछ मेन्यूज आपको दिखेंगे जो टैब्स बने हुए हैं, जैसे न्यू, माई ड्राइव, शेयर्ड विथ मी, गूगल फोटोज, रिसेंट, स्टार्ड, ट्रैश, ये सारे ऑप्शंस आएंगे। गूगल पे जब भी आपको कोई नया काम करना है, यानी ड्राइव पे जब भी कोई नया काम करना है, तो फर्स्टली यू हैव टू चूज न्यू ऑप्शन। आपको न्यू पे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आपने न्यू पे क्लिक किया, उसके कुछ सब मेनूज ओपन हो, फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड, गूगल डॉक्स, गूगल शीट, गूगल स्लाइड्स एंड मोर, ये कुछ ऑप्शंस आएंगे जिन पे हमें काम करना है। जनरली हम कोई भी फाइल या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स जो अपने सिस्टम पे सेव करके रखते हैं और उसको हम चाहते हैं कि वर्चुअली क्लाउड पर हमें वो अवेलेबल हो जाए कि हम कहीं भी जाएं और उन डॉक्यूमेंट्स को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकें, तो ऐसी फैसिलिटीज गूगल ड्राइव आपको प्रोवाइड करता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इन ड्राइव्स के अंदर सेव करके रख लें और एनीवेयर जहां भी आप जाना चाहें वहां जाकर इसको यूज कर लें। तो सबसे पहले आपको गूगल ड्राइव पे क्या करना पड़ेगा, अपना एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप एक ऑप्शन पे जाएंगे, क्लिक ऑन फोल्डर। फोल्डर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये एक छोटा सा विंडो ओपन होगा, दिस इज कॉल्ड फॉर न्यू फोल्डर। जैसे ही आप न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे, वो आपसे पूछेगा यहाँ पर कि उसका नाम, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, जस्ट लाइक फॉर रिज्यूम, सम अदर डॉक्यूमेंट्स नेम, सम मार्कशीट्स एक्सेट्रा, व्हाटएवर, जो आप बनाना चाहें या जो उस लेबल का जो उसका नाम देना चाहे उस फोल्डर का, आपने वो नाम दिया। और उसके बाद क्रिएट, जो ब्लू कलर का एक ऑप्शन नीचे दिख रहा होगा फोल्डर में, क्रिएट पे आप उसको क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक फोल्डर बनके, मैंने यहाँ पर ONE1 नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ है और ये फोल्डर जो है उस ड्राइव पे शो होने लगेगा। वो ड्राइव के अंदर उस 1 नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया। अब सपोज दैट ये फोल्डर का आपने लेबल तो दे दिया, फोल्डर का लेबल बना लिया। अब उसके अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं, अपलोड करने हैं या अटैच करने हैं, उसके अंदर डालने हैं। तो सबसे पहले उस फोल्डर पे डबल क्लिक करिए। जैसे ही आप उस फोल्डर पे डबल क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ऐसा विंडो ओपन होगा जिसपे लिख कर आएगा कि ड्रॉप फाइल्स हियर, और यह फोल्डर पूरा एम्प्टी होगा, खाली होगा। हम किस फोल्डर के अंदर है, माई ड्राइव के अंदर हमने ONE नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया और उस फोल्डर पे हमने डबल क्लिक किया माउस से। जैसे हमने क्लिक किया तो हमें ये विंडो ओपन होगी। इसके बाद हमें प्रोसेस करनी है अब कि उसके अंदर हमें कोई फाइल्स या कोई भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे आपने उस फोल्डर को ओपन किया हुआ 1 को, उस पे माउस का राइट क्लिक करिए और उस पे एक विंडो फिर से एक छोटी सी ओपन होगी जिसमें ये व्हाइट कलर की आपको दिख रही होगी, न्यू फोल्डर, अपलोड फाइल्स, अपलोड फोल्डर, गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स। हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कोई फाइल हमें अपलोड करनी है इस गूगल ड्राइव पे, तो हम अपलोड फाइल ऑप्शन को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही अपलोड फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम पे जहां पर आपने वो फाइल सेव करके रखी हुई है, डेस्कटॉप या डाउनलोड या माई कंप्यूटर, वहां से जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे, विंडो ओपन होगा ओपन का, और उस पे आपको वो ऑप्शंस दिखेंगे कि आप किस पर्टिकुलर फोल्डर को अपलोड करना चाहते हैं जो आपने बना के रखा है। जैसे मैंने इसमें रोड JPG का एक फोल्डर लिया हुआ है और उस फोल्डर को मैं इसमें अपलोड करना चाह रहा हूं, तो मैंने उसको सेलेक्ट किया और इसके बाद ओपन पे मैंने उसको क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। जैसे मैंने इसको ओपन पे क्लिक किया तो ये रोड जो JPG थी ये मेरी ड्राइव में जाके सेव हो जाएगी। ये यहाँ पर जो 1 नाम का मैंने फोल्डर बनाया हुआ है उस फोल्डर पे जाके ये अपलोड हो गई। आपको देखना है कि आपके फोल्डर पे अपलोड हुई कि नहीं हुई है, तो गूगल ड्राइव में जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। जहां आपकी ड्राइव है, माई ड्राइव में क्लिक करेंगे। जैसे ही आप माई ड्राइव पे क्लिक करेंगे वो आपको दिखने लगेगा कि वो फोल्डर आपने अपलोड किया है कि
नहीं किया है। नेक्स्ट, जैसे ही आपने ये कर लिया, अब आपको लगता है कि ये तो अपने पर्टिकुलर फाइल को अपलोड किया है, अब उस फोल्डर के अंदर हमें और भी कुछ सब फोल्डर्स या कुछ और भी चीजें क्रिएट करनी है, तो फिर से आप एक क्या करिए, फोल्डर अपलोड का ऑप्शन, फिर न्यू पे जाएंगे, जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे फोल्डर अपलोड का ऑप्शन आएगा, फिर फोल्डर अपलोड ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है माउस से। जैसे आपने सेलेक्ट किया तो ये एक फोल्डर जो मेरे पास पहले से मेरे सिस्टम पे बना हुआ है कार्स नाम का, वो मुझे शो होने लगेगा। उस फोल्डर को मैंने क्या किया, फिर से मैंने उसको फोल्डर को सेलेक्ट किया और ओके बटन पे मैंने क्या कर दिया, उसको प्रेस कर दिया। जैसे ओके को मैंने क्लिक किया, ओके करने के बाद वो फोल्डर फिर से मेरी ड्राइव पे क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि आप जो भी प्रोसेस अपलोड या कोई भी प्रोसेस करते हैं तो नीचे की स्टेटस बार भी आपको शो होता है। आप देखेंगे एट द बॉटम यहां पर आपको प्रोसेस दिखती है कि आपने जो प्रोसेस करी है वो कितने आइटम्स हैं और क्या क्या आपने उसमें अपलोड के लिए ऑप्शन दिया। तो यहां नीचे प्रोग्रेस बार और अपलोड की इंफॉर्मेशन भी आती है कि आपने क्या कर लिया है। जैसे आपने इस प्रोसेस को अपलोड किया तो आप देखिए इस फोल्डर के अंदर हमने कार नाम का जो बनाया था फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर बहुत सारी पिक्स हैं, तो वो पिक्स भी उसके अंदर शो होने लगी। अभी मैं ये जो स्लाइड आपको दिखा रहा हूं जस्ट लाइक एक डेमो भी मैं आपको लास्ट में करके दिखाऊंगा। ये सारे जो मैंने ऑप्शंस आपको पीपीटी के माध्यम से बताए हैं वो मैं लाइव कैसे कर सकता हूं या कैसे अपन करेंगे, तो वो मैं आपको एट द एंड में आपको शो करके दिखाऊंगा। हमने कार नाम का एक फोल्डर लिया था, उसके अंदर बहुत सारी फाइलें, कुछ जेपीजी जो भी फाइलें थी वो ली थी, वो पूरा का पूरा फोल्डर हमने क्या कर लिया, अपनी ड्राइव में कॉपी कर लिया या अपलोड कर लिया सीधा। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है गूगल डॉक्स। हम डॉक्यूमेंट्स कोई प्रिपेयर करना चाहते हैं, कोई रिसर्च वर्क से रिलेटेड कोई पेपर प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं या कोई पेपर रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट जो हम टाइप करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं अपन अपनी गूगल ड्राइव पे, तो गूगल हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है गूगल डॉक्स की, यानी डॉक्यूमेंट्स के लिए। हम न्यू पे क्लिक करेंगे और गूगल डॉक्स का एक ऑप्शन फिर हमें इनेबल होगा। उस गूगल डॉक्स पे जैसे ही माउस से आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा विंडो ओपन होकर दिखेगा, दैट्स कॉल्ड ब्लैक डॉक्यूमेंट विंडो। हम जब इस विंडो को ओपन करेंगे तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखिए अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट्स के नाम से आपको दिखेगा। आपको जो भी टाइप करना है, जो भी मैसेज या जो भी आपका टेक्स्ट है, जो भी डॉक्यूमेंट है, उसको आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए और इसके बाद एक काम जरूर करिए इस पे कि आप इसको रीनेम कर लीजिए। रीनेम कैसे करेंगे, जहां पे अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट के नाम से आ रहा है उस डॉक्यूमेंट का कुछ नाम आप यहाँ पर सेव कर दीजिए, दे दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्यूमेंट 1, ये मैंने नाम दिया है। इसके अलावा जो वर्ड में आप काम करते हैं, फॉर्मेटिंग के जितने भी प्रकार की फॉर्मेटिंग है, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हो, चाहे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हो, चाहे कोई अलाइनमेंट्स हो, चाहे कोई टेक्स्ट हो, किसी भी प्रकार का जो वर्ड्स में आप कर सकते हैं, जो वर्ड में कर सकते हैं, वो सारी फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल होती है गूगल डॉक्स के अंदर। तो हम जब इसका नाम दे करके डॉक्यूमेंट को जब करेंगे तो आप देखिएगा इसमें गूगल हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जो भी इस पे टाइप करते हैं या जो भी डॉक्यूमेंट इस पे आप लिखते हैं वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक जाके सेव हो जाता है। मतलब आपको अलग से कहीं सेव करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे आप वर्ड, एक्सेल या अन्य किसी टूल पे यदि काम कर रहे हैं एप्लीकेशन पे, तो आपको वहां जाके फाइल में सेव करना पड़ता है। लेकिन गूगल एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स टाइप किए हैं या कुछ भी आपने किया है तो वहां आपको सेव करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है आपके ड्राइव में। मैंने डॉक्यूमेंट ये टाइप किया, दिस इज द फाइल डॉक्यूमेंट, ऐसा करके मैंने इसको कर दिया और ये गूगल ड्राइव पे मेरे देखिए सेव होके मुझे दिखने लगा डॉक्यूमेंट 1 के नाम से। इसी तरह से मैं गूगल शीट्स का भी उपयोग कर सकता हूं, जिसमें आपके एक्सेल कोई भी टेबल फॉर्मेट में जो आपने काम किया है वो न्यू पे फिर जाएंगे, क्लिक करेंगे, गूगल शीट ऑप्शन सेलेक्ट करिए। गूगल शीट पे जैसे आप क्लिक करेंगे उसका एक विंडो ऐसा ओपन होगा आपके सामने, दिस इज कॉल्ड फॉर स्प्रेडशीट ओपन, जैसे एक्सेल में आप करते हैं। फिर से एक नाम दीजिए जो भी आप देना चाहते हैं और उस पर जो भी डॉक्यूमेंट आप टाइप करना चाहते हैं टाइप करके और उसको क्लिक करेंगे तो वो आपकी ड्राइव में जाके सेव हो जाएगा। इसी प्रकार से गूगल शीट्स स्लाइड्स भी हैं। गूगल स्लाइड्स के माध्यम से भी हम जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं
वो भी गूगल शीट के माध्यम से कर सकते हैं। गूगल शीट पे आप क्लिक करेंगे, न्यू ऑप्शन के अंदर ही है ये। जैसे क्लिक करेंगे, पावर पॉइंट जैसे आपका ओपन होता है वैसा इसमें ओपन हो जाएगा। फिर से वही प्रोसेस करना है आपको। कोई भी डॉक्यूमेंट्स लेके उसका नाम जो भी आपको टाइप करना है डॉक्यूमेंट में, जो भी कॉपी पेस्ट करना है वो कर लीजिए। एक प्रेजेंटेशन तैयार कर लीजिए, उसका एक नाम दे दीजिए और इसके बाद आप वहां से बाहर आ जाइए। जैसे उससे बाहर आएंगे आप, ये फिर से आपका गूगल ड्राइव पे जाके सेव हो जाएगा। एक जो महत्वपूर्ण बात है गूगल साइट की, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। आप जो सर्टिफाई एम या जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर अभी आएंगे जो आपको बताएंगे कि ई सर्टिफिकेट्स वगैरह कैसे हम तैयार कर सकते हैं, तो हम ये गूगल शीट्स स्लाइड्स के माध्यम से उन ई सर्टिफिकेट्स को भी डिजाइन कर सकते हैं। मतलब ये जो सर्टिफिकेट ई सर्टिफिकेट की जो प्रोसीजर है वो हम गूगल स्लाइड के माध्यम से भी कर सकते हैं। यहाँ पर वेरियस थीम्स आपको मिलेंगी। उन थीम्स के माध्यम से हम अपने प्रेजेंटेशन को, अपने सर्टिफिकेट को डिजाइन कर सकते हैं थ्रू द गूगल स्लाइड। आपने जैसे ही गूगल स्लाइड कर लिया, इसके बाद इसमें हमने बताया था कि न्यू में एक ऑप्शन लास्ट में आता है मोर का, मोर ऑप्शन। मोर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो गूगल फॉर्म्स, गूगल ड्राइंग्स, गूगल माई मैप, ये ऑप्शन आते हैं। अभी हमारी जो नेक्स्ट स्पीकर है या जो नेक्स्ट डे आपको एफडीपी में जो लेक्चर मिलेगा वो है आपका गूगल फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, उसमें हम क्विजेस कैसे बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन लिंक कैसे बनाएंगे, फीडबैक कैसे बनाएंगे। तो वो सारी प्रोसेस गूगल फॉर्म के माध्यम से होती है। तो हम एक सिर्फ जनरल व्यू आपको बता दे रहे हैं कि गूगल फॉर्म से आप क्लिक करेंगे, गूगल ड्राइंग ओपन करेंगे तो उसका विंडो आपको ऐसा ओपन होके दिखेगा। गूगल मैप्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसका ऐसा विंडो ओपन होगा। इसके मैप को भी आप नाम दे सकते हैं, जहां अनटाइल्ड मैप लिखा है वहां कोई मैप का नाम आप दे करके उसको सेव कर सकते हैं। यहाँ मैप का नाम दिया और आपने उसको सेव कर दिया। ये सारी प्रोसेस जितनी भी हमने करी है, ये सारी प्रोसेस हमारी ड्राइव में जाके सेव हो रही है। आपको देखना है तो ये माई ड्राइव में जाके आप क्लिक करेंगे, वहां से भी आपको सारी प्रोसेस हो जाएगी कि आपने क्या क्या किया। जैसे मैंने कार्स नाम का एक फोल्डर बनाया, वन नाम का एक बनाया, डॉक्यूमेंट वन बनाया गूगल डॉक्स के माध्यम से, फर्स्ट फॉर्म मैंने गूगल फॉर्म के नाम से बनाया, शीट वन गूगल शीट से बनाई, है ना, स्लाइड्स गूगल स्लाइड्स के माध्यम से फर्स्ट ड्राइंग बनाई, स्लाइड वन बनाई। ये सारे ऑप्शंस जो मैंने जो आपको न्यू के अंदर बताई है सारे मैंने प्रोसेस कर लिए। अब बात ये आती है कि मान लीजिए हमें कोई फोल्डर बनाना है फिर से, तो माउस से क्या करिए, उस ड्राइव पे जहां माई ड्राइव लिखी हुई उस पर क्लिक करेंगे, माउस का राइट क्लिक, और उस पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा फिर न्यू फोल्डर का। हमने इतनी सारी प्रोसेस जो करी, जैसे डॉक्यूमेंट वन बनाया है, फर्स्ट ड्राइंग बनाई है, फर्स्ट फॉर्म बनाया है या शीट वन बनाया है, हम इन सारे पर्टिकुलर फोल्डर या पर्टिकुलर जो हमारे ऑप्शंस ये दिख रहे हैं आपको गूगल स्लाइड शीट वन, इन सबको हम एक फोल्डर के अंदर रखना चाह रहे हैं। अभी तो सब सेपरेट सेपरेट है, अभी हम सबको एक फोल्डर के अंदर बनाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कॉलेज ने करवाया, एक वेबिनार करवाया, उस वेबिनार में कराने के बाद वो जो सर्टिफिकेट जनरेशन कॉलेज है वो सर्टिफिकेट जनरेट करना चाहता है, तो उस सर्टिफिकेट को वो चाहता है कि मैं एक फोल्डर में रख दूं जिसमें उसका सर्टिफिकेट भी हो और साथ में उसके पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट भी हो। अभी जो मैंने आपको ये प्रोसेस बताई है इंडिविजुअल थी कि आपने अपना तैयार किया हुआ प्रेजेंटेशन है, आपका जो सर्टिफिकेट है वो इंडिविजुअल बना लिया आपने, एक गूगल शीट्स में जाके आपने उसकी अटेंडेंस बना ली, या जो शीट्स बनी है उस पर उनकी पूरी डिटेल आ गई, रजिस्ट्रेशन डिटेल आ गई। तो मैं चाहता हूं कि वो दोनों पर्टिकुलर एक फोल्डर पे चले जाएं, तो मुझे क्या करना है, ड्राइव पे जाकर के माउस से राइट क्लिक करना है और न्यू फोल्डर का एक ऑप्शन क्या करना है, चूज करना है। मैंने न्यू फोल्डर का एक ऑप्शन चूज किया और उसको मैंने एक नाम दे दिया गूगल डॉक्यूमेंट का। जैसे मैंने उस गूगल डॉक्यूमेंट का नाम दिया और क्रिएट पे जाके मैंने इसको क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया, तो ये माई ड्राइव में गूगल डॉक्यूमेंट के नाम से वो मुझे सेव होके दिखने लगेगा। जब ये गूगल डॉक्यूमेंट के नाम से मुझे सेव होके दिखने लगेगा तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे सेपरेट सेपरेट जो फोल्डर्स दिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट वन, शीट वन या फर्स्ट स्लाइड, इनको मैं वहां पे ले जाके क्या करूंगा, डायरेक्ट ड्रैग करके मूव कर दूंगा। तो वो कैसे करूंगा, यहां से कॉपी करके और वहां ले जाके पेस्ट कर दूंगा। जैसे फर्स्ट स्लाइड को मैंने ले जाके वहां पेस्ट कर दिया
गूगल डॉक्स को ले जाकर मैंने गूगल डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट कर दिया। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे तो मेरे पास जो सारे बने हुए थे, क्या, गूगल डॉक्स, गूगल शीट, स्लाइड 1, ये सारे के सारे उस फोल्डर के अंदर आ गए। कौन से फोल्डर के अंदर? गूगल डॉक्यूमेंट के अंदर आ गए। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरे फोल्डर बने हुए हैं उन फोल्डर्स का मैं कोई पर्टिकुलर कलर चेंज करना चाहता हूं या कुछ भी करना चाहता हूं, तो मैं उस पे माउस का राइट क्लिक करूंगा और एक ऑप्शन आएगा मुझे चेंज कलर का। देखिए नीचे दिया हुआ चेंज कलर, ओपन विथ, न्यू फोल्डर, शेयर, गेट लिंक, मूव टू, है ना, रीनेम, डाउनलोड, ये ऑप्शन दिया हुआ सारा। तो मैं इस पे चेंज कलर पे जाके क्लिक करूंगा। जैसे ही चेंज कलर पे क्लिक करूंगा, अभी ब्लू दिख रहा है। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, उसमें जिस भी कलर में आप उस फोल्डर को करना चाहते हैं उस कलर का वो फोल्डर बन जाएगा। तो मैंने ये कलर्स कर दिए। इसके बाद मैं चाहता हूं कि जो मेरा ये डॉक्यूमेंट, जो सारी चीजें बनी हुई हैं, मैं किसी को शेयर करना चाहता हूं कि मेरे ये जो डॉक्यूमेंट्स मेरी ड्राइव में सेव हो गए हैं उसको कोई एक्सेस कर ले या एक्सेस करना चाहता है, तो मैं कैसे उसको एक्सेस कराऊंगा। तो उस पे एक ऑप्शन आएगा, माउस का राइट क्लिक करेंगे जब आप उस फोल्डर पे रख के, उसी फोल्डर पे रखना है जिसको आपको शेयर करना है। जैसे आप उस फोल्डर पे माउस का राइट क्लिक करेंगे तो आप देखिए एक ऑप्शन आएगा शेयर का। विंडो पे देखिए साइड में दिख रहा है एक शेयर का ऑप्शन, और जैसे ही आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो शेयर पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन, ये विंडो छोटी सी ओपन हो जाएगी, शेयर विथ वंस। जैसे ये ऑप्शन इनेबल होगा तो इसमें कुछ पोर्शंस आपको दिख रहे हैं। पहले पोर्शन पे देखिए लिखा है लिंक शेयरिंग ऑन, और उस पे एक ऑप्शन आ रहा है एनीवन विद द लिंक कैन व्यू। इस पे 3 ऑप्शंस आते हैं, एक आएगा रिस्ट्रिक्टेड का, ठीक है, एक आएगा एडिटर का, और एक आएगा एनीवन का। एनीवन को भी जब क्लिक करेंगे आप तो उससे क्या होगा कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट है ये कोई भी एक्सेस कर सकेगा। यदि आपने इसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया या कुछ और कर दिया तो क्या होगा, दूसरों को वो विंडो शो होगा ही नहीं। उस कंडीशन में क्या करेंगे, आपको सबसे पहला काम करना है कि जब भी आप शेयर विथ वंस अदर्स का ऑप्शन देंगे वहां पे आपको एनीवन को सेलेक्ट करना है, एनीवन कैन व्यू। जैसे आपने उसको सेलेक्ट कर दिया तो वो किसी को भी क्या करने लगेगा, शो होने लगेगा, कोई भी उसको ऑप्शन भी देख सकता है। इसके अलावा एक ऑप्शन और होता है कि हम चाहते हैं कि सभी को हम ना दिखाएं, सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक पर्सन को दिखाना चाहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर, या जिसको हम भेजना चाहते हैं। उस कंडीशन में क्या करिए, एक नीचे ऑप्शन आता है पीपल का। जैसे आप पीपल पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे उसकी मेल आईडी पूछेगा कि यू हैव टू शेयर द मेल आईडी। उस व्यक्ति की आप मेल आईडी को वहां क्या करिए, पेस्ट कर दीजिए, और जैसे ही आप मेल आईडी को पेस्ट कर देंगे तो उसको क्या होगा, वो व्यू कर लेगा। उसके साइड में देखिए राइट साइड में लिखा है कैन व्यू, तो वो जो डॉक्यूमेंट है आपका उसको शो होने लगेगा। अगर आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति को जो डॉक्यूमेंट आप शेयर करना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, कोई मैसेज भी अगर ड्रॉप करना चाहते हैं, तो एक नीचे देखिए एक मैसेज बॉक्स का भी कॉलम दिखेगा यहाँ पर, वहां पर आप उसको मैसेज टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, गुड डे, आई एम शेयरिंग टू यू द फाइल्स यू नीड, थैंक यू, और जो भी नाम XYZ। और इसके बाद एक नीचे ब्लू कलर की एक बटन दिख रही है जिसपे लिखा है सेंड। इसके बाद आप उसको सेंड कर दीजिए। जैसे सेंड करेंगे वो उसके पास वो ऑप्शन चला जाएगा। तो मैंने इसमें जो आपको ऑप्शंस बताए हुए हैं वो मैंने आपको ये बताया है कि आप अपने गूगल ड्राइव्स पे डॉक्यूमेंट्स को कैसे रख सकते हैं और उसको कैसे शेयर कर सकते हैं। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं, आप किसी भी प्रकार के, चाहे वो यूट्यूब से रिलेटेड कोई आपके वीडियोस हो या कोई डॉक्यूमेंट्स हो या कोई प्रेजेंटेशन हो, एवरीथिंग यू कैन शेयर विथ दीज ऑप्शंस। मैं एक लाइव डेमो आपको करके दिखा रहा हूं। मैम स्क्रीन इज विजिबल? Yes, sir. ओके। Yes. मैंने यहाँ पे अपनी मेल आईडी ओपन करी हुई है। यहाँ पे देखिए राइट साइड में जहाँ पर मेरी पिक लगी उसके जस्ट थोड़ा सा पहले आप देखेंगे वो जो डॉटेड्स मैंने अभी आपको बताए थे,
उस डॉटेड्स पे आप क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो मैंने जो ऑप्शंस आपको सारे शेयर किए हुए थे, अकाउंट, सर्च, मैप्स, यूट्यूब, प्ले, न्यूज, जीमेल, मीट, कॉन्टैक्ट, ड्राइव, कैलेंडर और भी मैनी मोर ऑप्शंस हैं। तो हम यहां पर क्या करेंगे, गूगल ड्राइव्स को हम क्लिक करेंगे। हमने गूगल ड्राइव्स को क्लिक किया। जैसे हमने गूगल ड्राइव्स को क्लिक किया तो आप देखेंगे यहां पर ड्राइव्स में एक ऑप्शन आ रहा है, न्यू, माई ड्राइव, शेयर्ड विथ मी, रिसेंट, स्टर्ड, ट्रेस, ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। और नीचे आपको ये क्लाउड का एक साइन बना हुआ है जिसपे आपको ये बता रहा है कि आपको कितना स्पेस अवेलेबल है और कितने स्पेस पे अभी आप काम कर चुके हैं। हमने अभी ऑप्शंस जैसे लिया कि सबसे पहले हमने क्लिक किया न्यू पे, और न्यू पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक ऑप्शन आएगा फोल्डर का। हमने ये फोल्डर पे क्लिक किया तो देखिए विंडो पे एक ऑप्शन दिख रहा है न्यू फोल्डर का। हमने न्यू फोल्डर का नाम दे दिया सपोज दैट ICT FDP। हमने इस नाम का एक फोल्डर दे दिया और उसको हमने क्रिएट कर दिया। जैसे हमने इसको क्रिएट कर दिया तो देखिए ये हमारी माई ड्राइव का जो ऑप्शंस था, हमने माई ड्राइव पे क्लिक किया और ये ICT नाम का जो अभी हमने फोल्डर बनाया था ये हमें आप दिखने लगा। इस फोल्डर पे हमने बोला था कि आप डबल क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप इस डबल क्लिक करेंगे फोल्डर पे तो यहाँ पर ये ड्रॉप फाइल शेयर का एक ऑप्शन दिखने लगेगा और यहां से एक राइट ऑप्शन भी इसमें आते हैं, या चाहे तो इस पे ले जाके राइट क्लिक करेंगे, माउस का मैंने बताया था, राइट क्लिक करेंगे और ये अपलोड फाइल्स का ऑप्शन आएगा, न्यू फोल्डर, अपलोड फाइल्स, अपलोड फोल्डर, ये सारे ऑप्शंस। मैंने क्या किया, यहाँ पे अपलोड फाइल्स पे जाके मैंने क्लिक किया। मेरी इस पे जो फाइल्स पहले से बनी हुई हैं या मैंने जो बना के रखी है जिनको भी मैं अपलोड करना चाहता हूं, सपोज दैट मैंने ये बनाया है FDP फाइनल MH के नाम से और मैं इसको अपलोड करना चाहता हूं, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको मैंने ओपन कर दिया। देखिए मैंने नीचे बताया था आपको एक प्रोग्रेस बार दिखेगी और ये बताएगा कि आपने जो प्रोसेस करी है वो हो गई कि नहीं। ये देखिए नीचे लिख के भी आ रहा है 1 अपलोड कंप्लीट, और ये नीचे ग्रीन कलर का एक सिग्नल भी बन के दिख रहा होगा कि आपकी फाइल जो है वो अपलोड हो गई। और ये देखिए मुझे जो है ये फाइल जो है वो मेरी ड्राइव में मुझे ICT के नाम से क्या होने लगी, फोल्डर के अंदर दिखने लगी। अब मैं कोई फोल्डर बनाना चाहता हूं, अगर इस फोल्डर के अंदर बनाना चाहता हूं तो यू हैव टू क्रिएट फोल्डर। अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो अलग से फिर जाके इसको बना सकते हैं, फिर कोई एक फोल्डर कर सकते हैं अगर देना चाहें तो जैसे मैं ड्राइव पे जाता हूं, फिर एक नया फोल्डर बनाना चाहता हूं, न्यू पे जाऊं, एक ये फोल्डर मैंने क्लिक किया। इस फोल्डर में पहले से मेरे पास कोई बना हुआ फोल्डर होना चाहिए, मैंने एक फोल्डर पहले से बना के रखा हुआ है। सपोज दैट मैंने ये फोल्डर बनाया हुआ है। ये कुछ फोल्डर्स मैंने बना के रखे हैं जैसे 501, सपोज दैट मैंने इस फोल्डर को ले लिया। अब इस फोल्डर के अंदर बहुत सारे जो है वो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी है। इसको मैं एक बार आपको पहले दिखा देता हूं कि इस फोल्डर के अंदर ऑलरेडी बने हुए क्या क्या हैं, तो उससे थोड़ा सा और आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ये मैंने फोल्डर को डायरेक्ट ओपन किया हुआ है। इसके अंदर ये कुछ पिक्स हैं जो लगभग 8 पिक्स हैं। अभी मुझे इस फॉर्मेट में ये दिख रही है पिक्स। ये फोल्डर को मेरे को क्या करना है, इस ड्राइव के अंदर पूरा कॉपी करना है। तो मैंने क्या किया, मैं न्यू में गया, मैंने ये फोल्डर अपलोड के ऑप्शन पे गया, ये फोल्डर अपलोड, डाउनलोड डेस्कटॉप पे था मेरा न्यू फोल्डर 2, और मैंने ये फोल्डर लिया था और इसको अपलोड कर दिया। ये अपलोडिंग की प्रोसेस देखिए चल रही है और ये फोल्डर जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा और यहाँ पर माई ड्राइव में मुझे वो शो होने लगेगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये देखिए मेरे को फोल्डर एक 5010 ये मुझे शो होने लगा। इस फोल्डर पे मैंने अभी 8 पिक्स मैंने इस फोल्डर के अंदर आपको बताई थी, तो ये देखिए पूरी 8 की 8 पिक्स जो है वो आपको शो होने लगी, 4 और 4। ये मैंने पूरा का पूरा अपलोड कर दिया है पूरी पिक्स को। अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर ये जो मैंने ड्राइव के अंदर बनाया हुआ है फोल्डर, इस फोल्डर का मैं
कलर चेंज करना चाह रहा हूं तो चेंज कलर का ऑप्शन आएगा। राइट क्लिक किया, माउस से मैंने चेंज कलर का ऑप्शन दिया, इसको मैंने रेड कलर से कर दिया। माई ड्राइव पे जब आप जाएंगे तो ये फोल्डर का कलर जो है आपको रेड कलर से दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे आपको 5010 जो है वो रेड कलर का दिखने लगा। अब ये जो फोल्डर आपका बना हुआ है, इस फोल्डर को आपको क्या करना है, एक्सेस करना है, कि आपको किसी को शेयर करना है, लिंक को शेयर करना है कि मैं इस फोल्डर की लिंक को कैसे शेयर करूं। और ये शेयर का ऑप्शन राइट क्लिक करेंगे जैसे, या उस पर क्लिक भी करेंगे तो शेयर का ऑप्शन दिखेगा। शेयर पे जाएंगे, आपको ये विंडो ओपन होगी, और ये विंडो जैसे ही ओपन होगी तो मैंने अभी आपको बताया कि पर्टिकुलर आप क्या कर सकते हैं, किसी को शेयर भी कर सकते हैं पर्टिकुलर मेल आईडी के थ्रू। ये मैंने मेल आईडी के थ्रू भेजा है। किसी को कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, आई हैव सेंड फाइल मैसेज टाइप कर दिया हमने और सेंड का ऑप्शन कर दिया, तो क्या होगा, ये पर्टिकुलर पर्सन के पास सेंड हो जाएगा। हमने भी बोला अगर मान लीजिए किसी को आपको शेयर करना है, भेजना है लिंक को, पर्टिकुलर मेल आईडी पे नहीं भेजना है, सिर्फ चाहते हैं कि आप उसको, जैसे यूट्यूब का कोई वीडियो है, चैनल है, और आप चाहते हैं कि पब्लिकली उसको सभी लोग देखें और शेयर करें, तो ये जो रिस्ट्रिक्टेड ओनली का ऑप्शन जो आ रहा है, इसको चेंज कर दीजिए। आप यहां लिख दीजिए एनीवन विथ लिंक। यहां देखिए ऑप्शंस आएंगे, रिस्ट्रिक्टेड का, एनीवन विथ लिंक का। मैं इसको एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। शेयर पे जाएंगे, शेयर पे जैसे क्लिक करेंगे नीचे एक ऑप्शंस दिखेगा आपको, गेट लिंक। गेट लिंक पे जाएंगे और ये चेंज का ऑप्शन ब्लू कलर का नीचे दिख रहा है, इसको चेंज कर दीजिए, एनीवन विद द लिंक कर दीजिए। जैसे आप एनीवन विद द लिंक करेंगे, ये क्या होगा, सभी को दिखने लगेगा या सारे लोग इसको एक्सेस कर सकेंगे। अगर आपने इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, तो ये सिर्फ वही देख सकता है जिसने इसको क्रिएट किया है, दूसरे लोग इसको एक्सेस नहीं कर सकते। यहां से आप इस लिंक को कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी लिंक, और आप शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हैं। जनरली जितने भी गूगल फॉर्म्स या जो सर्टिफिकेट्स या आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको आप किसी को एक्सेस कराना चाहते हैं या परमिशन देना चाहते हैं, तो हम इन्हीं के माध्यम से लिंक शेयर कर देते हैं और वो उस चीज को क्या कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं। दैट्स ऑल। अगर किसी को कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। बिहाफ ऑफ यू सर, मैं पूछना चाहूंगी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जो भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं इस प्रोग्राम में, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप वीरेंद्र कुमार सर से पूछ सकते हैं। Okay, there is no question. Thank you, sir. It is very curious and meaningful topic for us. आपने हमें बहुत ही अच्छे विषय में जानकारी प्रदान की, जो निश्चित ही हमको किसी भी प्रोग्राम और वेबिनार को ऑर्गेनाइज कराने में हेल्प करेगी। Now I welcome to Mr. K.S. Bhatia, sir, Professor, Maths Department. Over to you, sir. थैंक यू मिश्रा मैडम। मैं कॉलेज के बिहाफ में त्रिपाठी जी का, जो अपने मेन स्पीकर थे, उनका धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन दी सबको। इसी के साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने इसको ज्वाइन किया, उन सबका धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। Thank you, sir. मैं इस कार्यक्रम में
उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट को फिर से धन्यवाद करती हूँ हमारे महाविद्यालय परिवार की ओर से। और हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं जो हमारे साथ कल होंगे इसी टाइम में, जिसका टाइमिंग है आपको सभी को पता है, मैंने फर्स्ट में ही आपको शेड्यूल प्रोग्राम बताया है, जो कल से आज से ही कंटिन्यू रहेगा। तो कल संडे को भी 2:30 पे हम इस कार्यक्रम को इसी तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें आपको नितिन पटेल सर जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर माता गुजरी से हैं, वो आपको यूट्यूब लाइव रिकॉर्डिंग स्ट्रीम और शेड्यूल के बारे में बताएंगे, जो निश्चित ही आपके लिए वेरी क्यूरियस टॉपिक होगा, जो आपको किसी भी तरीके के चैनल को किस तरीके से हम बना सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, उस सभी के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैम यदि किसी को पीपीटी चाहिए तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो वो आपके द्वारा वो पीपीटी भी अगर चाहिए किसी को तो डाउनलोड कर सकेंगे। ओके सर। थैंक यू सो मच। हमारे धीरेन्द्र सर आप Yes, sir, yes, sir. भेज दीजिएगा, हम लोग उसको शेयर ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर।